امامت کا منصب ملا تو ان دو عہدوں کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے شجاعت، بہادری جسے کہا جاتا ہے، دوسرا جرأت مندی۔ یہ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے حکومت اور امامت کے لیے۔ اس کے بغیر کوئی بھی قوم اپنا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دو چیزوں کے بغیر اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا ناممکن ہے، بلکہ اپنی حکومت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہود دنیا میں سب سے زیادہ بزدل تھے۔ سب سے زیادہ بزدل قوم اگر کوئی گزری ہے تو وہ یہودیوں کی ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس لیے کہ ہر بادشاہ انہیں آسان ہدف سمجھ کر حملہ آور ہوتا رہا اور یہ مقابلہ کرنے کی بجائے ہمیشہ بھاگ کر جان بچایا کرتے تھے۔ لہذا ایسے لوگ اللہ کے دین کی کیا خدمت انجام دے سکتے تھے؟ اس لیے اللہ رب العالمین اس دین کی حفاظت اور اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہیں معزول کر دیا، اور یہ منصب دوسروں کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اللہ رب العالمین اسی لیے فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ یہود قوم کو تم ایسے پاؤ گے جیسے زندگی کے بہت زیادہ حریص ہیں، جینے کے بڑے حریص ہیں، زندگی کو یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لمبی عمر دے، موت ہی نہ آئے، تمنا ہی نہیں کرتے موت کی۔ اللہ رب العالمین کا تذکرہ فرماتا ہے حتیٰ کہ یہ معاملہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی یہ چاہتا ہے کسی طرح وہ 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر اسے عذاب سے بچا سکتا ہے نہ اللہ رب العالمین کے عقاب سے بچا سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہودیوں کا جو موت پر خوف تھا اور آخرت سے جو انکار کیا کرتے تھے، آخرت سے وہ کراہت کیا کرتے تھے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ سب سے پہلے یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت بعض یہودیوں کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ہمیں ہرگز جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا ٹھکانہ ہی نہیں، جنت اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہی بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مباہلے کی دعوت دیے۔ اب یہ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں کوئی قوم آ کر آپ کو دعویٰ کر رہی ہے، جیسا یہود دعویٰ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے چلو مقابلے کے لیے آؤ میدان میں، اگر تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں اللہ سے دعا کریں، ایک دوسرے پر بد دعا کریں، اگر دونوں قوموں میں کوئی قوم جھوٹی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، چلو میدان میں تم بھی آؤ ہم بھی آئیں گے۔ اللہ رب العالمین اس کی وضاحت بہت سارے آیتوں میں بیان فرمایا۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت میں وضاحت اللہ نے بیان فرمایا ہرگز یہ موت کی تمنا ہی نہیں کرتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ 1000 برس ہم جیے۔ عذاب کیوں؟ معلوم تھا اپنے گناہوں کا مؤاخذہ کس طرح ہوگا، ہمارے گناہ کیسے ان کو معلوم تھا، اور اس گناہ کی سزا اللہ کیسے دے گا یہ بھی یہ جانتے تھے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ پھر ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان کے وعدوں کو، ان کے باتوں کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں، اس کے برگزیدہ بندے ہیں، لہذا ہمیں جنت ہی میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، جہنم ہرگز ہمیں نہیں ملے گی، یہ اس طرح دعویٰ کرتے تھے۔ اور آل عمران کی ایک آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مباہلے کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی وضاحت بیان فرماتا ہے، اے نبی کہو فقل تعالو، لو آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ چلو تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لاؤ،
तुम भी आओ, हम भी अपने बीवी बच्चों के समेत आते हैं, एक मैदान में जमा हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दोनों आपस में एक दूसरे पर बद्दुआ करते हैं। जो कौम झूठी है, जो कौम अल्लाह के वादों से मुकरती है, जो कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वादा खिलाफी करती है, जो कौम अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करती है, एक दूसरे को बद्दुआ देंगे और वो और तमाम के तमाम जमा हो जाओ, इस तरह हम मुबाहला करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही सहाबा को कहा था, जब मुबाहले को दावत दी जाए, ये लोग बड़े ज़ोर से दावत तो कर देंगे, लेकिन मुबाहले की जब बात आएगी ये सरीह तौर पर इनकार कर देंगे। सहाबा के सामने आपने कहा था, जब इन लोगों का साबिक़ा हुआ, उन लोगों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, मुलाकात में जब मुबाहले की दावत दी गई तो उन्होंने सरीह तौर पर इनकार कर दिया, सरीह तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हम मुबाहले को तैयार नहीं हैं, मुबाहले के लिए हम तैयार नहीं। फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके पूरे अक़वाल को यहाँ पर बयान करके अब उम्मत मुहम्मदिया को ये तालीम देना चाहता है, ईमान वालों को अल्लाह ताला ये नसीहत करना चाहता है, लोगों जितने भी बरस रहो मौत तुम्हें आकर रहेगी, मौत की तमन्ना या करो या ना करो, लेकिन मौत तुम्हें आकर रहेगी। इसी सूरह जुमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के बाद कहा, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह मिन दूनिन्नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन वलन यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। फिर उसके बाद मौत की वज़ाहत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। इंसान मौत से दूर भागना चाहता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन, भागना चाहता है, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम जितने भी दूर भागना चाहते हो भागो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम्हें उसे मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं, मौत तुम्हें आकर मुलाकात करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी वज़ाहत बयान फरमाई। फिर सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में बंद हो जाओ मौत तुम्हें आकर रहेगी, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मौत तुम्हें आकर दबोच लेगी। इंसान मौत की तमन्ना करे या ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वक्त अजल लिख दिया है, जो वक्त मुकर्ररा लिख दिया है, उस वक्त पर मुझे और आपको मौत आना ज़रूरी है, उससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। जैसा ये यहूद मौत की तमन्ना नहीं करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी वज़ाहत यहाँ बयान फरमाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरफ़ूअन एक रिवायत नकल करते हैं, यहूद इस दावत मुबाहले के बाद जब मुबाहला हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुबाहला हुआ, उसके बाद कहते हैं अगर ये मुबाहले में आते और अल्लाह ताला से मौत की तमन्ना करते, अल्लाह अगर हम झूठे हैं इस मुआमले में, इस दीन पर अमल करने में हम झूठे हैं तो हम मौत दे दे, अगर इस तरह का ये मुबाहला करते। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हुए कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबाहले के बाद अगर यहूद मौत की तमन्ना करते तो अल्लाह ताला सब के सब एक ही बार मर जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा मुअजिज़ा बता देता, सब के सब यहूद मर जाते, इनका कोई नामो निशान नहीं होता। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके साथ फैसला करता, लेकिन ये मुबाहले को आए नहीं, तैयार नहीं हुए, उन्होंने इनकार कर बैठे। इसीलिए याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन यहूद को सलाम करने में भी पहल करने से मना फरमाया। इन यहूदियों को इनकी चालों से, इनकी बातों से, इनके वादों से, इनके जो दीन पर चलने के जो रंग ढंग को देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मुखालफत करने का हुक्म अपनी उम्मत को दिया। यहाँ तक कि अगर तुम्हें सलाम करने की ज़रूरत आ पड़े, सलाम में तुम पहल ना किया करो, सलाम में तुम पहल ना किया करो, पहले ना किया करो। और एक रिवायत आती है, देखिए ये इनके सलाम में भी कैसा इक़ाब था, कैसी बद्दुआएं दिया करते थे।
माए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, माए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि यहूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरते तो आपको सलाम करते। सलाम का क्या तरीका था? सलाम का क्या तरीका था? माया आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो अस्सलामु अलैकुम नहीं कहते थे, बल्कि कहा करते थे अस्सामु अलैकुम। लाम अलिफ को हज़फ कर देते, लाम अलिफ को हज़फ कर देते। क्या मतलब? देखिए कितना बड़ा फर्क यहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। अस्सलामु अलैकुम का माना है अल्लाह की सलामती तुम पर हो, अमन और शांति तुम पर हो, तुम राहत से रहो, तुम अमन से रहो, तुम्हें सलामती हो, तुम चैन से रहो, तुम इत्मीनान से रहो। पूरे माने सलाम में आ जाते हैं, पूरे माने सलाम में आ जाते हैं। अगर लाम अलिफ हज़फ कर दें, अस्सलामु अलैकुम कहें, तो याद रखो इसका मतलब है बद्दुआ। क्या है? बद्दुआ। तो यानी तुम मर जाओ, यानी तुम हलाक हो जाओ, यानी तुम बर्बाद हो जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूद गुजरते तो यही बद्दुआ करते थे, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम में पहल न किया करो। अगर वो सलाम करते भी हैं, यहूद हो काफिर हो, तो क्या जवाब देना है? व अलैक, इतना ही जवाब देना है। क्या है? व अलैक, तुम पर भी। अगर वो बद्दुआ दे तो वही बद्दुआ उन पर, अगर वो सलामती वाली दुआ दे तो सलामत वाली उसी को लौटा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैक के अल्फाज से उनको जवाब दिया करते थे। तो ये यहूदियों की चाल थी, इसीलिए अपनी उम्मत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया, उन यहूदियों को सलाम में भी पहल न करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तब्दुल यहूद वन नसारा बिस्सलाम। लोगों, यहूद और नसारा को तुम सलाम में पहल ना किया करो। व इज़ा लक़ीतुमूहुम फ़ित तरीक़ फस्तर्रुहुम इला अदियक़हु। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अगर जाते हुए रास्ते में तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाए, यहूदियों से, ईसाइयों से, नसारा से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, तो याद रखो फस्तर्रुहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्हें मजबूर कर दो, उस रास्ते में चलने से उनके लिए रास्ता तंग कर दो, इसलिए कि ये पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले लोग हैं, ये पीठ पीछे से आपकी प्लानिंग करने वाले लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई जंगें हुई, उस जंगों में इन्होंने बुज़दिलों का सामना, बुज़दिल जैसे होते हैं इस तरह उन्होंने सामना किया, पीछे से वार किया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को कमांडर बनाकर एक जमात उनके हमरा जंग के लिए रवाना करते, तो यह किला बंद हो जाते या वहां से राह फरार इख्तियार करते। ऐसी बुज़दिल कौम थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बुज़दिल कौम के बारे में हमें आगाह किया। फिर भी लेकिन हमारे उम्मत मुस्लिमा का अलमिया ये है, हम उम्मत मुहम्मदिया का अलमिया ये है कि हम मुत्तबा सुन्नत के नाम तो लेते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का दावा करते हैं, लेकिन इन्हीं यहूदी, इन्हीं ईसाइयों के नक्श कदम पर कदम ब कदम हम चल रहे हैं। तहजीब उनकी नौजवान को पसंद है, तमद्दुन उनका पसंद है, तारीख उनकी पसंद है, कल्चर उनका पसंद है, फैशन उनका पसंद है। आज नौजवान हर एक बातों में, हर एक काम में, हर एक अमल में यहूदियों के नक्श कदम पर कदम ब कदम चल रहा है, अपने आप को गोया ये साबित कर रहा है उम्मत मुहम्मदिया तो हैं, लेकिन यहूद और नसारा के नक्श कदम पर हम चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने मना फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से सलाम में तक पहल करने का हुक्म नहीं दिया, तो हमारे नौजवान, हम लोग, हमारी खवातीन, हमारी माएँ, हमारे औलाद, हमारे बच्चे यहूदियों के नक्श कदम पर चलने को आज फैशन समझते हैं, अपने आप को फख्र समझते हैं,
اور کتنی ایسی سنتیں ہیں پامال ہو رہی ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اگر شادی بیاہ کے موقع پر یہودی تربیت سے دعوت نہ دیا جائے تو وہ شادی نہیں کہلاتی۔ شادی بیاہ کے موقع پر اگر دعوت یہودیوں کے طریقے پر، عیسائیوں کے طریقے پر، کافروں کے طریقے پر کھانا نہ کھلایا جائے، رسم و رواج نہ کیا جائے تو وہ شادیاں نہیں کہلاتی۔ میرا اور آپ کا ہمارا شیوا یہ بن چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، ان کی چالوں کا تذکرہ یہاں بیان فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام تک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر کام میں ہمارے لیے موجود، الحمدللہ حدیثوں کے ذریعے ہمیں بتلائی گئی ہیں۔ ان سنتوں پر، ان احادیث پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارا دین نامکمل ہے؟ کیا ہمارا دین کامل نہیں ہے؟ ہر بات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے بتلائیے کون سی ایسی بات ہے جس کی طرف دین نے تمہیں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہمیں توجہ نہ دلائی، کون سی بات ایسی ہے بتلائیے۔ چاہے معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے معاشیات کا مسئلہ ہو، چاہے سیاست کا مسئلہ ہو، چاہے خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے مساجد کے آداب ہو، چاہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، میاں بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہیں، سارے آداب زندگی کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دین اسلام میں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، ہم انگریزی کتابوں کو پڑھنا زیادہ چاہتے ہیں لیکن دین اسلام سے راہ فرار اختیار کرنا ہمیں پسند ہے۔ قرآن کھڑے ہو کر سننا ہمیں دشوار نظر آتا ہے، ایئر فون رکھ کر گانوں کو سننا ہمیں مزہ آتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کلچر بن چکا ہے، اس کو ہم لوگ فیشن سمجھتے ہیں۔ سامعین یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، یہ دین سے دوری، دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھ کر انسان زندگی گزارے، اس کے لیے تنبیہ کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی تو تم سیلاب کے اوپر جو تنکوں کی طرح بے حیثیت ہو کر رہ جاؤ گے۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی وقار نہیں رہے گی، تمہارا کوئی رعب نہیں رہے گا، تمہارا کوئی دبدبا نہیں رہے گا، اور دشمن تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا آدمی دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے، اس طرح ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جو اس طرح دشمن ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، کثیر تعداد میں تم رہو گے۔ کثیر تعداد میں رہنے کے باوجود ساری قومیں تم پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑنے کی طرح پڑیں گے، کیونکہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب یہ چیز تمہارے اندر داخل ہوں گی، تمہاری تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی، اور دشمن تم پر دسترخوان میں، بھوکا آدمی دسترخوان پہ جس طرح ٹوٹ پڑتا ہے اسی طرح دشمن قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ سامعین، آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تعداد میں ہم کم نہیں ہیں، تعداد میں ہم کم نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ مالیت میں ہم کم نہیں ہیں۔
آج دیکھیے بڑے بڑے یونیورسٹیاں ان کے نام پہ ہیں، بڑے بڑے کالجز ان کے نام پہ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ہمیں جابوں سے دور کیا جا رہا ہے، محروم کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں سی ایم نے ایک اعلان کیا، اس اعلان کو سن کر سارے مسلمان پریشان ہو گئے، لیکن کسی کے اندر یہ قوت نہیں کہ سارے مسلمانوں کو الحمدللہ یکجا کر سکے، سارے مسلمانوں میں یہ بیداری پیدا کر سکے۔ اگر آپ الحمدللہ یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم سے کم کروڑ سے زیادہ تو ہوگی، ارب سے زیادہ تو ہوگی۔ اگر آدمی ایک روپے اپنا دن میں 1 روپے نکالے تو الحمدللہ ایک مہینے میں ایک کالج انسان بنا سکتا ہے، ایک مہینے میں ایک یونیورسٹی بنا سکتا ہے، ایک مہینے میں ایسے بچے کو جو ہوشیار ہو اسے IAS پڑھا کر قائم مقام ان کے ٹھہرا سکتا ہے، یہ چیلنج دے سکتا ہے دنیا کو۔ ہم بھی کسی میں کم نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے میں کسی بھی میدان میں ہم پیچھے نہیں ہیں، یہ کر سکتا ہے۔ لیکن کون سوچے گا اس دین کے تعلق سے، کون سوچے گا اس امت کی بھلائی کے تعلق سے؟ ہمیں تو فرصت نہیں اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، ہمیں تو فرصت نہیں گاڑی بنگلہ خریدنے کے لیے، ہمیں تو فرصت نہیں زمینات خرید کے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کا کہ میں کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے ہمیں فرصت نہیں۔ آپ بنیے، میں یہ نہیں کہتا، میں اس کا منکر نہیں ہوں، میں اس کا انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ کامیاب تاجر بنیے، لیکن پہلے اللہ کی عبادت، پھر داعی بنیے، دعوت دیجئے، دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ تاجر بنیے، دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ سیاستدان بنیے، آپ دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے کاروبار میں مہارت حاصل کیجئے، کسی بھی میدان میں آپ جائیے، لیکن دین اسلام سب سے پہلا میرا اوڑھنا بچھونا ہو، سب سے پہلا میرا اوڑھنا بچھونا ہو۔ اس حیثیت سے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ یاد رکھیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کو اپنے ٹھوکروں پر رکھا کرتے تھے، ٹھوکروں پر رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ان کے نقش قدم چومتی چلی گئی، دنیا ان کے پیچھے آتی گئی۔ ایک مثال کے طور پر ایک واقعے کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم بھی سوچتے ہیں ہمارا معاشرہ کیسا ہوتا ہے، ذرا دیکھیں۔ اگر کوئی بچہ اپاہج پیدا ہوتا ہے، کسی کا سر بڑا ہے، دھڑ چھوٹا ہے، تو اس کو ہم نام رکھتے ہیں، لیکن عہد نبوی میں دیکھیے ایسے لوگ کیسے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سر بڑا تھا، جسم چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سپر پاور جو حکومتیں تھیں، قیصر، کسریٰ، شاہ ایران، روم، بڑے بڑے یہ سلطنتیں تھیں، ان کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانا یہ مقصود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا خطوط کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے۔ 6 صحابہ کا انتخاب کیا، 6 صحابہ کو آپ نے چنا، اس میں عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان کی چالاکی دیکھ کر، ان کی جرات مندی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے سامنے جا کر اسلام کا پیغام سنانے کے لیے 6 صحابہ کو چنا، اس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلامی خطوط بادشاہوں کے نام پر لکھی جا رہی ہیں، لہذا لکھنے کے بعد یہ خطوط ان تک لے جا کر پہنچانا یہ 6 صحابہ کی ذمہ داری ہے۔ البتہ حضرت تمام صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 19 ہجری کا واقعہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خطوط لے کر گئے، اس وقت 19 ہجری کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کیا، ان کے ہاتھ میں خط دے کر کہا کہ تمہیں روم کو جانا ہے، اور روم کے جو بادشاہ ہے، روم کا جو بادشاہ ہے کسریٰ، وہاں جا کر تمہیں اسلام کا یہ خط، اس کے جو نام پر لکھا گیا ہے، امن کا پروانہ، امن کا پیغام تمہیں انہیں سنانا ہے۔ اللہ اکبر! یہ
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा से मशवरा किया तो मशवरे में सहाबा ने जवाब दिया था, हम बुज़दिल कौम नहीं हैं, हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की तरह नहीं हैं। जंग के लिए कहा जाए तो क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने? कहा था कि तुम और तुम्हारा अल्लाह जाकर लड़ो, हम यहीं पर रहेंगे। हम ऐसी कौम नहीं, ऐसा जवाब देने वाले नहीं। आप हमारे लिए आइडियल हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे सरबराह हैं, आप हमारे अमीर हैं, लिहाजा आप जो हमें हुक्म देंगे इंशाअल्लाह कर गुजरेंगे, चाहे हमारी जानों तक को कुर्बान क्यों ना करना पड़े, हम आपके हुक्म की ताबेदारी करने के लिए तैयार हैं। ये कहकर खुतूत को भेजा गया, खुतूत को भेजा गया। अल्लाहु अकबर। उसके बाद जाकर बादशाह के सामने ख़त पेश करना चाहा। सबसे पहले दरबारियों से कहा कि मैं अमन का पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से लेकर आया हूँ, लिहाजा मैं इसको बादशाह तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसके बाद उन्हें रहने के लिए एक हुजरा दिया गया। दूसरा दिन हुआ, दरबार को सजाया गया। दरबारी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, ज़ेब तन करके, अच्छा लिबास, उम्दा लिबास ज़ेब तन करके आकर बैठ गए। अब नबी का क़ासिद आया है, वो किस हालत में आएगा, कितने फ़ख्र से आएगा, कितने शान से आएगा, पता नहीं। इसलिए दरबार को खूब अच्छी तरह सजाया गया। दरबारी अच्छे उम्दा लिबास पहनकर बैठ गए। अब मुंतज़िर हैं वो आएंगे। कौन? हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, ना उम्दा लिबास मुयस्सर था, ना उम्दा खाना मुयस्सर था, ना उम्दा सवारियाँ मुयस्सर थीं। बस गुर्बत और इफलास की ज़िंदगी। अल्लाह ने जिस हालत में रखा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले इंसानों में से थे। दरबार में जैसे ही आए, एक चादर है जो जगह जगह से पैबंद लगी हुई है, फटी चादर है, गरकत के कांटे लगे हुए हैं चादर पर। ये देखकर दरबार में जितने लोग बैठे थे उम्दा लिबास पहनकर, उनके शान और शौकत को देखने के लिए ताज्जुब मालूम किए। बाज़ों को गुस्सा आ गया और एक दरबारी ने इशारा किया, बादशाह के करीब भी उन्हें जाने न दे, उनसे ख़त मांग ले, उनसे ख़त मांग ले, मांग कर तुम बादशाह तक पहुँचाओ। एक ने इशारा किया, उस आदमी ने इशारा करते ही दूसरे आदमी उठकर करीब आए और उस खत को मांगना चाहा, उस पैगाम को मांगकर बादशाह तक पहुंचाना चाहा। अल्लाहु अकबर। सारा दरबार उनका, दरबार में रहने वाले सिपाही उनके, फौज उनकी, हथियार उनके, असलहा उनके, अकेला तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर भरोसा करके आया, मुत्तबे सुन्नत बनकर आया, नबी का पैगाम सुनाने वाला बनकर आया। वो आदमी जब खत लेने के लिए आया, उस खत को निकाल लिया, उस खत को छीने तक नहीं दिया और कहने लगे, अल्लाह की कसम, नबी का हुक्म है, ये परवाना, ये खत, ये पैगाम सीधे बादशाह के हाथ में दिया जाए, किसी और को नहीं देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम मैं किसी और को नहीं दूंगा, सीधे मैं बादशाह के हाथ में दूंगा। ये जवाब सारे दरबार में उन्होंने दिया, ये जवाब सारे दरबार में उन्होंने दिया। दुनिया को अपनी ठोकरों पे रखने वाले ऐसे ही होते हैं। फिर उसके बाद हुआ है, बादशाह ने उस दरबारी को रोका, छोड़ दो, आने दो। आने के बाद खत को मांगा, खत को मांगकर अरबी जो पढ़ सकता था उस आदमी को बुलाया गया और अरबी समझकर उनकी ज़बान में, इब्रानी ज़बान गालिबन थी, इब्रानी ज़बान में पढ़कर जो इसका खुलासा सुना सके, ऐसे आदमी को, तर्जुमान को बुलाया गया। वो तर्जुमान जैसे ही ख़त खोला, इन्नहु मिन मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ली पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था खत में? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शाह ईरान की जानिब, जो यहाँ का फला जगह का बादशाह है। बादशाह का नाम बाद में आया था। ये बात सुनना था, खत में क्या है, क्या लिखा गया है, उसने सुना तक नहीं। जैसे ही ये जुमला सुना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, रगें फूल गए, चेहरा सुर्ख हो गया और झट से उठा और उस तर्जमान के पास से उस खत को लेकर उस खत के पुर्जे पुर्जे करके फेंक दिया। फिर कहा कि इसको मेरे दरबार से निकाल दो। ये नबी के कासिद
कासिद को मेरे दरबार से निकाल दो। अल्लाह अकबर, दुनिया को अपने ठोकर में रखने वाले इंसान को उस दरबार से निकाल दिया गया। फिर उनको मालूम नहीं अब क्या पीछे से लोग आकर हमला करेंगे, मौत का फैसला किया जाएगा, क्या किया जाएगा मालूम नहीं था। ये सवारी पर बैठे वहां से सीधे सवार होकर मदीने की तरफ चल दिए, मदीने की तरफ चल दिए। फिर जब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ, गुस्सा ठंडा हुआ तो उसके बाद तलब किया बादशाह, वो कासिद कहाँ है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद कहाँ है, उसे बुला ले आओ। दरबारियों ने बहुत जगह तलाश किया, उनका पता नहीं चला। ये सीधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। किस्सा यहाँ तक नहीं था, किस्सा यहाँ तक नहीं था। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इसने क्या किया, एक महाज तैयार किया, एक ख़त लिख कर भेजा बाज़ान को। बाज़ान जंगी कमांडर था जो इस हुकूमत की जानिब से, उसको हुक्म दिया गया कि फ़ला आदमी यसरिब मदीने का पहला नाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आया है, वो अपने नबूवत का दावा किया है, जाओ सीधे जाकर उन्हें पकड़ कर लाओ, मेरे दरबार में उसे हाजिर करो। ये ख़त बादशाह बाज़ान को लिख कर भेजा जो कमांडर था। जब ये ख़त बाज़ान को आकर पहुंचा, इसने 2 अच्छे जंगी सिपाहियों को तैयार किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए वहाँ से रवाना किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते ताइफ पहुँचे। ताइफ में चंद तिजारती काफ़िले आए हुए थे मदीने से। उन लोगों को पूछा कि ये फलां फलां आदमी जो नबूवत का दावा किया है वो आदमी कहाँ मिलेगा, तो बताया गया ये यसरिब में रहते हैं, ये यसरिब यानी मदीने में रहते हैं, आप वहाँ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद वो 2 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए मदीना पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो पैगाम पहुँचा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त पढ़वाया, ख़त पढ़वाने के बाद मुस्कुराया, कहा कि चलो अब आराम कर लो, फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा। रात का वक्त था, एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, सुबह हुई, 2 लोग आए, आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने लगे, आपने क्या सोचा है, क्या हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? वरना याद रखो हमारा बादशाह इस बात पर कुदरत रखता है कि वो अपनी फौज को लेकर तुम्हारी फौज को हलाक कर देगा, तुम्हारी कौम को तबाह व बर्बाद कर देगा। उस वक्त ऐसी सुपर पावर हुकूमतें थी, आज जैसे अमेरिका, इजराइल जो हुकूमतें सुपर पावर हुकूमतें हैं, उस तरह वो ज़माने में हुआ करती थी। तो उन्होंने अपनी हुकूमत का डर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ सिपाहियों सुन लो, इसके बाद आज के बाद तुम्हारे बादशाह से मुलाकात तो क्या, उसका चेहरा देखना भी तुम्हें नसीब नहीं होगा, उसका चेहरा भी तुम्हें देखना नसीब नहीं होगा। प्यारे नबी पेशन गोई कर रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई कर रहे हैं। आगे जो मुआमला हो रहा था अल्लाह ने बता दिया था, कहा कि आज के बाद तुम कभी अपने बादशाह की सूरत नहीं देख सकते, यानी उसका बेटा उसे कत्ल करके हुकूमत पर कब्जा कर लेगा, उसका बेटा हाकिम बन जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये सुनना था, बड़ा ताज्जुब मालूम हुआ, ये सुनना था, बड़ा ताज्जुब मालूम हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये हक है, ये होकर रहेगा, ये हक है, ये होकर रहेगा। ये दो सिपाही बड़े ताज्जुब से वहां से चल दिए। बाज़ान को इसके इत्तला दी, बाज़ान को इसकी इत्तला दी, जो कमांडर था वापस आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, फिर आकर इत्तला दी। बाज़ान ने कहा अगर ये सच्चा है अपने बात में, अगर ये अपनी बात में सच्चा है तो याद रखो अल्लाह का नबी होने से इसे कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह के नबी होने में कोई शुबा नहीं। अगर ये जो कह रहा है इसकी बात सच्ची होती है। ये कह रहा था, उसके दूसरे या तीसरे दिन बाद वहाँ से बेटे का ख़त आता है। क्या लिखा होता है? बेटे का ख़त। बादशाह जो था उसका बेटा ख़त भेजा है। क्या लिखा है? मैंने मेरे बाप का कत्ल कर दिया है और मेरी हुकूमत, मैं उसकी हुकूमत पर कब्जा कर लिया हूँ। ये इस वजह से कि मेरा बाप मेरी माँ के जो कौम के लोग थे उनको तबाह कर दिया था, उनको बर्बाद कर दिया था। उसका इंतकाम लेने के लिए मैं इस तरह उसका कत्ल किया है और मेरी ख़वातीन पर उसने जुल्म किया है, हमारी औरतों के साथ उसने जुल्म और ज़ियादती की है, इसलिए उसको अंजाम तक मैंने पहुँचाया है। मेरी सरबराही को तुम कबूल कर लो। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये ख़त पढ़ा
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बाज़ान ख़त इधर छोड़ दिया, कमांडरी इधर छोड़ दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। फिर यही सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में सन 19 हिजरी में जब जंग के लिए भेजा गया, इसी तरह की सुपर पावर हुकूमत थी, ईसाइयों की हुकूमत थी, वहाँ पर जंग के लिए भेजा गया तो वहाँ पर मुसलमानों को चंद मुसलमानों को कैदी बनाकर लाया गया। वो कैदियों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। बादशाह के सामने पेश किया गया, बादशाह के सामने पेश किया गया और कहा गया कि ये वो ख़ास आदमी है जो नबी की सोहबत में रहा करता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में रहा करता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास जो साथी थे उन साथियों में हुआ करता था। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में इसका भी शुमार किया जाता है। ये वो आदमी है। ईसाई बादशाह करीब बुलाता है, करीब बुलाकर उन्हें फुसलाने की कोशिश करता है। तुम मुझे सबसे ज़्यादा अक्लमंद मालूम होते हो, लिहाजा मैं आपको एक तजवीज़ देता हूँ। क्या तजवीज़ देता हूँ? तुम दीन इस्लाम को छोड़ दो, ईसाइयत कबूल कर लो। दीन इस्लाम को छोड़ दो, ईसाइयत कबूल कर लो। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह तआला अन्हु को एक बार दावत देता है, इनकार करते हैं। दूसरी बार दावत देता है, इनकार करते हैं। तीसरी बार दावत देता है, सरी तौर पर इनकार करते हैं। कहता है सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो। सूली पर चढ़ाया जाता है, तीरों से जख्मी किया जाता है, फिर सूली के नीचे उतारा जाता है। तकलीफ देने के बाद फिर वो ईसाई बादशाह कहता है कि तुम ईसाइयत कबूल कर लो, महफूज हो जाओगे, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा, तुम्हारी जान को बख्श दूंगा, तुम्हें महफूज व मामून कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं जो दीन को कबूल कर चुका हूँ उसे दीन पर मरूंगा, ईसाइयत को मैं कबूल नहीं करूँगा। उसके बाद बादशाह कहता है दरबारियों को 2 देग लाया जाए, बड़े बड़े देगों को लाया जाता है, उसमें तेल को खौलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तेल को खौलाकर गर्म किया जाता है। 2 मुसलमान कैदियों को सामने लाकर ठहराया जाता है। फिर वो बादशाह कहता है अय अब्दुल्ला अभी वक्त है, अय अब्दुल्ला अभी वक्त है, ईसाइयत कबूल कर लो वरना अंजाम से तुम दस्तबरदार नहीं हो सकते। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं अल्लाह की कसम, मैं दीन को फिरने वाला नहीं, तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। बादशाह हुक्म देता है जाओ वो देखते हुए तेल के देग में 2 मुसलमान कैदियों को डाल दो। दरबारी एक फौजी को लेकर, एक मुसलमान कैदी को लेकर, फौजी कैदी को लेकर देग में खौलते हुए देग में डाल देते हैं। देखते ही देखते हड्डी अलग, गोश्त अलग हो जाता है। अल्लाह अकबर। ये मुआमला कहने सुनने के लिए आसान है, जिस पर जो गुजरा वही आदमी जानता है। आज एक मामूली छींटा हम बर्दाश्त नहीं करते, मुसलमान को देखते हुए तेल के देग में डाला गया। फिर अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया अब भी वक्त है, फिर जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी पहले जितनी बार मना किया था, आखिरी बार जो मना किया सख्ती के साथ मना किया और कहा अल्लाह की कसम हरगिज हरगिज मैं तुम्हारा दीन कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर उसके बाद हुक्म दिया बादशाह ने फौजियों को, इनको भी उसी देग में डाल दो जो मुसलमान कैदी को देग में डाला गया। अल्लाह अकबर। दुनिया की रग़बत, दुनिया की चाहत उनके दिलों में नहीं थी। अल्लाह के लिए मरना ये जानते थे, कुर्बानी पेश करना ये जानते थे। दरबारी अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा को पकड़कर देग के करीब ले गए तो अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह तआला रोने लगे। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसके बाद दरबारी कहने लगे कि ऐ हमारे आका, ये मौत को देख कर डर गया है, रो रहा है, ये मौत से घबरा गया है, ये इसकी आंखों से आंसू जारी है, अश्कबार हो रहा है। बादशाह ने कहा अगर पहले ही ये मुआमला हो जाता, पहले ही आप कह देते मुझे मौत से डर लग रहा है, खौफ हो रहा है, मरना नहीं चाहते, पहले ये बात कह देते तो ये मुआमला इस तरह का नहीं होता। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह तआला इत्मीनान से उस बादशाह को जवाब देते हैं, उस ईसाई बादशाह को जवाब देते हैं
क्या तुम समझते हो क्या मौत को डर कर मैं रो रहा हूं? क्या तुम ये समझते हो कि मैं मौत को डर कर रो रहा हूं? तुम्हारे मेरे देग में डालने की वजह से, डालने की खौफ से मैं रो रहा हूं? हरगिज़ नहीं, मैं इस बात से रो रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सिर्फ एक जान दी है। अगर अल्लाह ताला मुझे 1000 जानें भी देता तो हर जान को इस तरह मैं देग में डालकर अल्लाह की राह में जान को देना पसंद करता, लेकिन दीन इस्लाम से फिरना मैं पसंद नहीं करता। अल्लाहु अकबर। ये दास्तान थी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये जवाब सुनना था। उस बादशाह ने क्या कहा? उस बादशाह ने क्या कहा? कहा कि अय अब्दुल्ला, एक शर्त पर मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, एक शर्त पर मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। क्या शर्त है? मेरी पेशानी पर आकर बोसा दो, तुम्हें भी छोड़ दूंगा, और तुम्हारे मुसलमान जितने कैदी मैं यहाँ लाया हूँ तमाम को छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अगर मेरा मुआमला होता तो ठीक था, लेकिन मेरे साथ मुसलमानों को भी रिहा किया जा रहा है, इसलिए बोसा देने में क्या हरज है। वो आगे बढ़कर बादशाह के पेशानी को बोसा देते हैं और सही सलामत अपनी और अपने मुसलमान कैदियों की जान बहिफाजत वापस लेकर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर सारा वाक़या सुनाते हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब के तौर पर कहते हैं, ये बड़े सर वाले सहाबी जिनका जिस्म छोटा हो लेकिन कारनामे इतने बड़े, दुनिया को अपने ठोकरों में रखकर अल्लाह के दीन को गालिब करने वाली बात कहकर अल्लाह के पैगाम को सुनाकर इन्होंने आया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे लोगों, हर उम्मती को हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेशानी पे बोसा देना चाहिए, और उसकी इब्तिदा मैं करता हूँ। उसके बाद उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर सबसे पहले उनकी पेशानी पर बोसा दिया और अपनी उम्मत को भी ये तालीम दी। लिहाजा ऐसे कारनामे कहकर इस दीन को हम तक पहुँचाया गया, और हम और आप क्या कर रहे हैं इस दीन को? ये असल बात है, ये असल पैगाम है। याद रखिए, अल्लाह के दीन को समझना, उस पर अमल करना, उसको दूसरों तक पहुंचाना, यही मुहासल है, यही खुलासा है, यही पैगाम है। इन्हीं चंद कलिमात पर इक्तफा करते हुए अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको जितनी बातें यहाँ पर कही गई हैं, कहने वाले को कहने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह की आयत को पढ़कर इबरतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह कुरान से हिदायत का रास्ता तलाश करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जब तक हम इस दुनिया में रहें ईमान और इस्लाम की ज़िंदगी नसीब फरमा, जब ख़ातिमा हो कलिमे वाली मौत नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।